Good morning, students. On previous video, last video, I told you about direct and indirect speech or narration. On that day, I told you find some sentences like assertive sentences, interrogative, imperative, exclamatory, and positive. These are sentences which are changed under the chapter direct and indirect narration or speech. Students, today I am going to tell you when we change a direct sentence into indirect speech, we need to change many things, like as tense of the verb and pronoun of the sentence. Today I am going to tell you how you have to change the personal pronoun. These pronouns we change according one formula, that is son upon 123. Accordingly, we can change the personal pronoun in reported speech when we change a direct sentence into indirect speech. On that day last week, I told you what is direct speech and what is indirect speech, and I also told that there are two parts in direct speech sentence, while in indirect speech sentence only one part is there. So now I am telling to you how you have to change personal pronoun. One, I or we. Second, you. Third, he, she, it, and they. These are the personal pronouns. These pronouns you have to change it. Then you will change a direct sentence into indirect sentence. Clear? First, there are two pronouns of first person. First person के लिए जिसे हिंदी में प्रथम पुरुष भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष. There are two pronouns of first person. First person के दो pronouns होते हैं. First person, I and we. I is in singular number and we is in plural number. Second person pronoun you. In older English, that was also thou. But in present time, it is not used. It is used in older English. And this was the singular number and this was plural number. But nowadays, only you is used. It is singular and plural both. It is singular and plural both. Third person pronoun he, she, it. These are in singular number. These three pronouns are used in singular number while they is in plural number. ये जो तीन प्रोनाउन है he, she, it, ये सिंगुलर नंबर है. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जिसे
हिंदी में उल्टा पुरुष भी कहा जाता है, ये मध्यम पुरुष बीच का, और इसका प्लूरल नंबर होता है देयर दे। क्लियर टू ऑल? तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एस फॉर होता है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट एंड ए फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एम फॉर नो चीज, नो चीज। डियर फर्स्ट पर्सन के ये जो दो प्रोनाउन है आई और बी, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किए जाते हैं। कैसे चेंज किए जाते हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के प्लेस पर जो प्रोनाउन लिखा है उसके नंबर और जेंडर के अनुसार ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन यू, यू ये ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यू को चेंज किया जाता है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करते हैं। जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा होता है अकॉर्डिंग दैट, उसी के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। इट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अगर प्रोनाउन ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इट इज यानी नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। क्लियर? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किससे चेंज किए जाते हैं? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। मीन्स इफ the third person pronoun are used in reported speech, then you need not to change anything. आपको कुछ भी changes नहीं करना होगा। Clear student? The other general rules, ये general rules है सभी टाइप के जो sentences हैं 5 टाइप के, ये सभी में ये रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। That's why I'm telling you to start assertive sentence। इसलिए assertive sentence स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो एक तरीके से जो जनरल रूल्स है और नेसेसरी है, जो जरूरी है वो मैं पहले बता रहा हूँ। स्टार्ट। नेक्स्ट, चेंज ऑफ टेंस ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ tense of verb, changing of verb, changing of verb, verb tense, this is when we are going to change any direct speech sentence into indirect speech, we also need to change the verb of reported speech sentence. इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जब आपका रिपोर्टिंग पर एक सेंटेंस लिखा हमने, आई सेड एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, he said to me, comma inverted comma, I am writing
the latter. This is the direct speech sentence. Student, I have already told you, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, this is reporting verb और this is reported speech. ये आपका reporting verb है और ये reported speech है. तो अभी tense change की हम बात कर रहे थे कि आपको tense change कब करना है. जब reporting verb past tense में हो, जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस जो यानी ये वाला जो टर्म है, ये अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस से है लिया तो आपको जो इधर वर्ब यूज किया जा रहा है उसका टेंस चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है. ओनली यू नीड टू चेंज प्रोनाउन. केवल आपको प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. But when you are reporting verb in past tense, जब ये आपका reporting verb past tense में होता है तो आपको reported speech में आज के वर्ब का भी tense past में ही चेंज करना पड़ता है. वो आप बिल्कुल सीरियस से चेंज करेंगे, उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सीरियस से आप चेंज करेंगे. और समटाइम्स इसके लिए एक एक्सेप्शन भी है स्टूडेंट. जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा फैक्ट हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, यानी हमेशा सच रहने वाली बात हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता. क्लियर है? तो इसके मैं आपको टेंस परिवर्तन किस तरह से आपको करना है present indefinite. Present indefinite tense change into past indefinite, into past indefinite tense. Seriously, again continuous change into past continuous tense and again perfect change into past perfect. Past perfect tense and present perfect continuous. Perfect continuous change into past perfect continuous. Serious. Present indefinite, past indefinite, present continuous, past continuous, and present perfect, past perfect, and past perfect continuous change into present perfect continuous change into past perfect continuous. Clear? Like this way. And to change future tense into past, shall and something more. Past indefinite
टेंस change into past perfect and past continuous change into past perfect continuous like this way you have to change. And one more thing is shall फ्यूचर टेंस को चेंज करने के लिए क्या करना है shall and will should and would. This way you have to change the tense of reported, the tense of verb of reported speech. इस तरीके से आपको दिया रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज करना होता है। एग्जांपल भी बता दिया आपको। ये चेंज कब होते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी इंटरजेक्ट कभी मैंने आपको लिखा था और उसमें बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी यहाँ सेकंड वर्ब यूज की गई हो। मोस्टली सेंटेंसेस में से विल से या शैल लिखा होता है। तो जब शैल लिखा होगा यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में आगे वर्ब का टेंस चेंज करना है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई है या फ्यूचर टेंस यानी विल और फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। वन मोर कंडीशन, एक एक्सेप्शन है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है या हिस्टोरिकल फैक्ट में आता है, दैट इज रिमेन नो चेंज। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा या स्टेटमेंट होगा वो नो चेंज होगा यानी उसके बाद को आपको चेंज करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कुछ रूल्स प्रोनाउन के मैं और भी आपको बता रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बी यूज किया गया है तो लेकिन वो बी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए हो तो बी इसमें चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? इसमें वो अभी आपको डिफरेंट कंडीशन में जो आपको सेंटेंस बताएंगे तो आपको उसी तरह से कुछ रूल्स और भी बताए जाएंगे। तो एक सेंटेंस अभी मैंने लिखा था, दूसरा लिख रहा हूँ। सेंटेंस है he said to me, comma inverted comma, you are my friend. My friend. ये सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव। तो इसको देखिए डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच है। ये आपका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पार्ट को क्या कहते हैं और
पार्ट को चेक करते हैं। क्लियर? बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका जो वर्ब होता है उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। वो जिस टेंस में होगा उसी में होगा, उसी में रखेंगे। केवल इतना होता है कि अगर केवल सेड लिखा है तो सेड रहने देते हैं और सेड टू लिखा है तो टोल्ड में बदल देते हैं। ऐसे ही केवल से लिखा हुआ है तो से रहने देंगे, अगर से टू लिखा है तो टेल में बदल देंगे। ऐसे ही बिल से है तो बिल से रहने देंगे, अगर बिल से टू है तो बिल टेल हो जाएगा। लेकिन ये किसमें होता है? एडवर्टाइजमेंट सेंटेंसेस में। अभी आपको एक केवल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ही सेड टू लिखा हुआ है तो किसमें चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। और ऐसा सेंटेंस में जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट को, यानी जब सेंटेंस हमारा एसर्टिव हो तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? दैट। आपको पहले से मैंने बताया था। अब ये आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के चेंज के आपको बताए थे, बुक में भी आप फिर से स्टडी कर सकते हैं। If you are not understanding anything or any point, any sentence, you can ask. तो you आपको बताया था कि कहाँ से चेंज होता है? सेकंड पर्सन, सॉरी ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहाँ से चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको यहाँ से चेंज करना है। तो जो यहाँ होगा उसका ही, अब ये सब्जेक्ट केस है तो इसका सब्जेक्ट केस आपको यहाँ लिखना है, यानी वी का सब्जेक्ट केस क्या होता है? आई। दैट आई। यू किसमें चेंज हो गया? आई। अब आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में, इसलिए इसका भी ये वर्ब पास्ट में करना होगा। तो पास्ट में करने के लिए इज आर ऐसा क्या हो जाता है? वाज आर वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई का। अब आई के साथ हमें फर्स्ट पर्सन, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर का वर्ड यूज करना है। फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर नंबर है तो आई के साथ का यूज करते हैं वॉच। माई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये यहाँ से चेंज होता है। कहाँ से? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है तो जी का पॉजिटिव केस लगेगा, यानी यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। और लास्ट में क्या लगाएंगे? यहाँ पुलिस का। तो ये हो गया ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट आई विल टेल नेक्स्ट टाइम।